Good morning students. Welcome to Maths online class of Mascot School of Excellence at home. Students, today we will understand the position above and below. Above and below. Look at the bulb and the blackboard. Bulb and the blackboard. Can you tell me where is the bulb in this? Tell me. The bulb is above the blackboard. The little bulb is above the blackboard. It is not resting on the blackboard. It is not touching the blackboard. ये blackboard को touch नहीं कर रहा. Yes. So it is above it. It is above it. Students, tell me, does the bird fly on us और above us? क्या पक्षी हम पर उड़ता है या हमारे ऊपर? Is the bird touching us when it is flying? No. If the bird is not touching us, then it is flying above us. अगर पक्षी हमें टच नहीं कर रहा होता जब वो उड़ता है, तो वो कहाँ उड़ता है? हमारे ऊपर. कहाँ उड़ता है? हमारे ऊपर. So students, please write the word in your notebook. Above. A-B-O-V-E. Above. Write it in your notebook. The word above. A-B-O-V-E. Above. Let's look this picture again. Where is the blackboard? Tell me, where is the blackboard? It is below the bulb. If you can see, the blackboard is below the bulb. It is not under the bulb because the bulb does not cover it. It is not directly under the bulb, hence it is below the bulb. इसका क्या मतलब है कि ये बल्ब के नीचे है. If it was directly under it, then we would have said that a blackboard is under the bulb. But it is not directly under it. ये सीधा इसके नीचे नहीं है ना. ब्लैकबोर्ड सीधा बल्ब के नीचे नहीं है. Hence we are saying that the blackboard is below the bulb. Below होता है बेटा नीचे. Okay. Now write down the word below in your notebook. B-E-L-O-W. Below. Below means नीचे. Below means नीचे. Let's see the difference between below and under. Below and under. Below and under. Look at image 1. See. Tell me, is the boy standing below or under the bridge? Is the boy standing below or under the bridge? See, position of the boy is lower than the position of the bridge. Position of the boy is, boy की position कैसी है? Lower than the position of the bridge. कम है ना. boy की position कम है, bridge ऊपर है और boy नीचे है. But the boy is not covered by the bridge. Bridge ऊंचा है boy से, but the boy is not covered by the bridge.
लेकिन क्या है, जो पुल है वो बॉय को कवर नहीं कर रहा। द बॉय इज स्टैंडिंग बिलो द ब्रिज। द बॉय इज स्टैंडिंग, लड़का कहाँ खड़ा है, बिलो द ब्रिज, ब्रिज के नीचे। लुक एट द इमेज 2, सी केयरफुली। इज द बॉय स्टैंडिंग बिलो और अंडर द ब्रिज? इज द बॉय स्टैंडिंग बिलो और अंडर द ब्रिज? The position of the boy is lower than the position of the bridge. अभी भी क्या है, बॉय की पोजीशन क्या है बेटा, ये पुल से नीचे है, लोअर देन है। द बॉय इज कवर्ड बाय द ब्रिज। अब क्या है बेटा, जो ब्रिज है वो बॉय को कवर कर रहा है। द बॉय इज कवर्ड, कवर्ड है ना, बॉय कवर हो रखा है अब किसमें, ब्रिज से। सो द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। क्या कहेंगे अब हम, द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। सी द डिफरेंस बिलो एंड अंडर। बिलो मीन्स लोअर देन अनदर ऑब्जेक्ट, नॉट कवर्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट। लोअर देन अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से छोटा। नॉट कवर्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ढका हुआ नहीं। अंडर का मीनिंग देखेंगे, मीन्स अंडर मीन्स लोअर देन अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से छोटा। फुल्ली कवर्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से पूरा ढका हुआ। तो ये बेटा इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है बिलो और अंडर में। लुक एट इमेज 3। आर द बुक्स बिलो और अंडर द टीवी? आर द बुक्स बिलो और अंडर द टीवी? टेल मी। सी द बुक्स आर नॉट फुल्ली कवर्ड बाय द टीवी। The books are not fully covered by the TV. किताबें क्या हैं बेटा, not fully covered by TV, टीवी से पूरी तरह ढकी हुई नहीं है। So the books are below the TV. The books are below the TV. बुक्स कहाँ हैं, टीवी के नीचे। Look at the image 4. See carefully. Tell me, are the books below or under the TV? See carefully. Now the books are covered by the TV. अब क्या है बेटा, किताबें टीवी से ढकी हुई हैं, covered हैं। So now we can say that the books are under the TV. डायरेक्टली नीचे हैं टीवी से। सो वी कैन से डैट द बुक्स आर अंडर द टीवी। नाउ आई वांट टू ऑल ऑफ यू टू ओपन योर वर्कशीट नंबर 10, पोजीशन अबोव एंड बिलो। सी कंसेप्ट टाइम, द विंडो इज अबोव द बेड। विंडो कहाँ है बेटा, बेड के ऊपर। एंड द बेड इज बिलो द विंडो, और बेड कहाँ है, विंडो के नीचे। सी लुक एट द पिक्चर्स, आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इन पिक्चर्स को देखो और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे उनका आंसर देना है आपने। सी इन ए पार्ट, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट अबव द स्टार। आपने क्या करना है, जो ये स्टार है इसके ऊपर जो शेप बनी हुई है, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है जो स्टार के ऊपर, वो आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। बी पार्ट में क्या करना है, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट बिलो द सर्कल। जो सर्कल के नीचे है ऑब्जेक्ट, आपने उसको ड्रॉ करना है यहाँ। सी में देखेंगे, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट अबोव द पेंटागन।
जो ये पेंटागन के ऊपर है ऑब्जेक्ट, वो आपने क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। डी में देखेंगे बेटा, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट बिलो द रोम्बस। इस शेप को बेटा, इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, रोम्बस। और आपने कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, जो रोम्बस के नीचे है। और रोम्बस के नीचे क्या है, पेंटागन। क्या है, पेंटागन। लास्ट वाले में देखेंगे ई पार्ट में, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट अबोव द ट्राइंगल। ट्राइंगल के ऊपर क्या है बेटा, सर्कल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्कल बनाना है। ठीक है। फॉर दिस आई एम गिविंग यू सम टाइम टू कंप्लीट these questions. Okay, very good. Draw the objects. Okay, let's check your answers. Check your answers. आई होप बेटा आपने भी इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए होंगे। डेट्स ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्नड 2 न्यू वर्ड्स, अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो। नाउ वी नो 8 positions, and these positions are top, bottom, on, under, inside, outside, above and below. So I hope आप सबको ये पोजीशंस समझ में आ गई हैं। So आप एक बार फिर से इन पोजीशंस को अपनी पेरेंट्स की हेल्प से, अपने मम्मी पापा की हेल्प से इनको रिवाइज करेंगे। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।